इसका ब्राइटनेस कैसे बढ़ाते पता है देखो? किया स्ट्रीमिंग चालू? Okay, so very good afternoon to all my dear friends. Am I audible as well as visible? Please let me know. मेरे लिए चाय और पानी लेके आना. A very good afternoon to all of you all. Good afternoon, everyone. Am I audible as well as visible? Please let me know. I'm good, thank you so much. Okay, so everything is perfect, I guess. Let us begin with the lecture. Okay. कल हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स देखे थे, उसे मैं रिवाइज करना चाहती हूं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. यस गाइस, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. व्हाट आर दीज 5 टाइप्स? कैन यू ऑल टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी? हेलो एवरीवन, I have started with the lecture. Please chatting करना बंद कीजिए और मेरे सवालों का जवाब देना शुरू कीजिए. On the basis of validity, contracts are divided into 3 types. Can you tell me the 3? Sorry, I'm so sorry. On the basis of validity, contracts are divided into 5 types. Can you tell me the 5 types of these contracts? Come on, tell me. Valid, void, voidable, illegal as well as unenforceable contracts. कौन से है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम वैलिड मानेंगे? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में हर वो कोई चीज जो एक्ट में लिखी गई है प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त तो वैलिड था, but later on it was not possible to perform such a contract. It ceased to be enforceable. Such a contract from that very moment becomes a void contract.
What do you mean by a voidable contract? A contract which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of the other party is known as a voidable contract. Basically voidable contracts tab attract hote hai when the consent is not free. It is caused either by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. इलीगल अग्रीमेंट एक ऐसी अग्रीमेंट होती है जहां पे आपने ऐसा कोई चीज करने का वादा किया है विच लॉ हैज फॉरबिडन. एंड द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. बट एज सून एज यू करेक्ट योर डिफेक्ट such a contract becomes enforceable in nature. अगला सवाल आप लोगों से ये है कि on the basis of formation, okay, on the basis of formation, a contract can either be an express contract. express मतलब यहां पे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. So whenever you speak orally or you have a contract in writing, यहां पे words are being used, and because words are being used it is known as an express contract. फिर हो सकता है आपका implied contract, tacit contract और a quasi contract. ये तीनों भी जो है they are of an implied nature. Implied contract में obviously words are not used but the terms and conditions are not known to the parties. टर्म्स एंड कंडीशंस कहां पे नोन होती है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? वेयर आर द टर्म्स एंड कंडीशंस नोन टू द पार्टीज? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में? बोलो ना मुझे. वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन इंप्लाइड नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेयर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन इट इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन इट इज नोन as a implied contract. मयंक ने क्या क्वेश्चन भेजा, मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने तो लेक्चर स्टार्ट कर दिए है ना. आप क्या बोल रहे हो मयंक? मुझे समझ में नहीं आ रही है बात. आई डोंट नो. ओके, quasi contracts. Quasi contracts are those contracts. Quasi contracts are those contracts wherein what has happened is the contract is created by operation of law. कानून ने आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डाला हुआ है जिसके वजह से अब आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको कुछ राइट्स एज वेल एज जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी होती है. जैसे कि अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स is responsible to find the true owner of the goods and return the goods to this true owner. Okay. E-contracts. What do you mean by e-contracts? E-contracts are those contracts wherein the parties have entered into a contract through the electronic means. I guess ये contract तो आप सब लोगों ने किया है, so there is nothing to discuss about e-contracts. और एक last type का contract है and that is on the basis of performance. Contracts are divided into two types, executed and executory. हर वो कोई obligation जो आपको करना चाहिए था, अगर वो आपने कर लिया है सारी की सारी पार्टीज ने, then it is known as an executed contract. जबकि executory contract में क्या होता है my dear friends? Either one of the parties or both the parties have not yet fulfilled their obligations. Such a contract is known as an executory contract. And yes, very good. Executory contracts are further divided into two types. Unilateral. क्या बात है? Very good. Dimple, Kashish, Ricky, nice, very nice. Nishant. Executory contracts can either be unilateral or they can also be bilateral in nature. तो यही सारी चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. अब आज हम लोग अगले टॉपिक पे जा रहे हैं and that is
proposal or and offer. Chart number 1.3. Always remember, my dear friends, I just wanted to make this thing clear that this is a fast track batch. It is not a regular batch. अगर मेरी regular batch होती है, let me tell you, for this 60 syllabus, 60 marks syllabus, okay, I teach for around 90 hours, okay. So if I'm teaching in a regular batch, it is possible to teach. This main book is for around 110 pages. 110 pages की मेरी main book है. ये जो मेरी main book है 110 pages की है, और ये 110 pages से पढ़ाना तब possible होता है when I have around 90 hours in my hand. Try to understand this particular point. अब आपका examination जो है it is in June and your batch is a fast track batch. If it is a fast track batch, it is presumed you already know the basics of law. What is only required for you all is the brushing up of the knowledge, learning part, revision part, as well as practicing many questions, many questions, so that you are fully prepared for the examination in June. So obviously बात है, अगर आपका objective और intention ही कुछ और है fast track batch लेने का, you cannot go through the normal route. Regular batch की book से मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ और उस तरीके से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती हूँ. Try to understand this. Okay, so there is a difference between a 2020 match and a normal match. Okay, तो जो strategies आप normal matches पे apply करते हो in cricket, you cannot apply for a 2020 match. Otherwise you will fail. आप हार जाओगे. So वही वो चीज होती है even for studies. हमारा intention in a fast track batch is कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सको, so that you are fully confident to give the examination. आप खुद याद कीजिए आपकी 10th और 12th की एग्जामिनेशन, आप कितने कॉन्फिडेंट थे जब आप 10th की एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन लिखने जा रहे थे. मतलब आपका आपके पेरेंट्स के साथ यही डिस्कशन होता था कि मम्मी 70+ 80+ या 90+. वी वर नेवर डिस्कसिंग कि मैं पास होगा या फेल होगा. Why was that so? Because आपका प्रेपरेशन का लेवल इतना ज्यादा था that you are so confident that you are going to clear. सिर्फ ये था 80% प्लस से या 90% प्लस से. वही इंटेंशन है हमारा फास्ट ट्रैक बैच का. आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल सो कॉन्फिडेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर बैच कि क्लियर होना तो श्योर है. नाउ वी विल ओनली डिस्कस 60+ लाने हैं लॉ में या 70+ लाने हैं लॉ में. कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम आप रेगुलर बुक में से पढ़ाओ. माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल फ्रॉम अ रेगुलर बुक इन केस ऑफ अ फास्ट ट्रैक बैच. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फास्ट ट्रैक बैच में वी वांट मैक्सिमम रिजल्ट. जैसे 2020 के मैच में 20 ओवर्स में ही वी हैव टू गिव आवर बेस्ट. We don't even have the 21st over. So this is exactly what is happening in a fast track batch. और वैसे भी you will realize कि अभी मुझे कुछ 2 या 3 दिन हुए हैं पढ़ा के. You will realize कि फास्ट ट्रैक बैच में भी मैं बहुत डिटेल में जा रही हूँ. Every concept I'm taking that too in detail with examples. So if you feel that you want to do the learning aspect from a regular book, from the main book, एक बार मेरा समझा के हो जाता है फ्रॉम द मेन बुक. घर पे आप क्या कर सकते हो, रेगुलर बुक में से पढ़ सकते हो. आई गारंटी यू ऑल कि आपने अगर पिछले टाइम में लॉ अच्छे से पढ़ा नहीं भी होगा तो भी इस पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक बैच से यू विल गेट अ फुल कॉन्फिडेंस for this particular subject of law. So you can also do your studies on your own from the regular books whichever you have. Okay, so even if you have not taken my regular batch, it is okay. जो भी फैकल्टी की या सेल्फ स्टडी या इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल भी अगर आपके पास है, ये फास्ट ट्रैक बैच को सुन के और समझ के आप वो बुक में से पढ़ सकते हो. दिस इज माई गारंटी. बट एज फार एज मेरी बात आती है, आई विल नॉट बी एबल टू रीड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ रेगुलर बुक. सो दैट इज वाई व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू ऑल समरी बुक, दैट इज दिस चार्ट बुक अलॉन्ग विद द पीपीटी बुक. ओके, चलो शुरुआत करते हैं विथ ऑफर. कम ऑन. रिकी बोल रहा है मैम क्वेश्चंस लिखाना तो सिखा दो बेटा, आपको हर चीज में जल्दबाजी है. Yes, Jitesh, everything is getting covered. That is what I'm trying to tell you all.
हम लोग बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस वुड ऑल्सो मीन क्लास वर्क के साथ साथ आपको होमवर्क भी दिया जाने वाला है, बट देर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी तक मेरा फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुआ है. कुछ तो सिलेबस होने दो, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा. सब कुछ पहले दिन में कैसे हो सकता है, एक दिन में सब कुछ कैसे मिल सकता है. अभी तो हमने बीज बोया है, फल आने को समय लगता है ना. सब्र कीजिए, सब कुछ होने वाला है. सब कुछ कर रहे हैं हम उसके लिए, है ना. बराबर से उसको खत डाल रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी आएंगे. डोंट वरी, बट देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. सो जस्ट वेट. मुझ पे भरोसा करके आपने मेरी क्लासेस रखी है ना, बस अब कोर्स कंप्लीट करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है. आप सिर्फ मुझ पे भरोसा रख के जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती हूं क्लास में उसको फॉलो कीजिए. मेरी गारंटी है, इफ यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग दैट आई से इन क्लास, you will pass with flying colors. Not only pass, I'm telling you all will clear with flying colors. बस मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरे साथ आखिरी तक आपको चलना है. अगर ये वादा आप मुझसे करते हो, बाकी की गारंटी मेरी. आपके रिजल्ट का टेंशन मुझ पे. ओके, आ जाइए. चलो, पिछले 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूं, थोड़ा तो कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रही होगी, राइट? है ना. आ जाइए. थैंक यू सो मच. किसी ने पूछा है कि मैम, इफ यू फाउंड अ मैंगो बॉक्स एंड यू एट इट and the founder comes to know that the box was with you, are you payable to that owner? Yes, I am payable to that owner. विश्वास, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, कोलैटरल अग्रीमेंट एंड वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट, ये मेरा हुआ नहीं है. ये मैंने आपको कहा था ना, मैं ये यूनिट नंबर 3 में पढ़ाऊंगी आपको. देखो यहां पे मैंने स्टार मार्क भी किया है. कल ही जो मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन पढ़ने बोला था, आप सुन नहीं रहे थे क्या विश्वास? यहां पे मैंने कहा था कि ये पॉइंट आप रीड मत करना, बिकॉज दिस विल बी कवर्ड लेटर ऑन. सो जस्ट कीप इट पेंडिंग. दिस विल बी डन इन यूनिट नंबर 3. ओके, चलो आ जाइए. समन कह रहा है मैम 25 सालों की तो आप खुद भी नहीं लग रहे हो. चलो आ जाइए. Okay. Okay, come on. Now stop discussing all these things. Let us discuss the next topic, which is relating to offer as well as proposal. तो सुनो मेरी बात, सुनो ना. proposal as well as offer. तो अब देखो, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहती हूं और उसी से ऑफर का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हूं. पीपीटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, चेक आउट दिस एग्जाम्पल. यहां पे देखो क्या हुआ था. आरके दीपिका को पूछता है. ओके, आरके दीपिका को पूछता है, विल यू मैरी मी. आरके जो है वो दीपिका को पूछता है, विल यू मैरी मी. अब देखो यहां पे जो हुआ है, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम आरके साइड टू दीपिका साइड. जहां पे आरके दीपिका को पूछता है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे. अब ये जो ऑफर है जो आरके ने दीपिका को दिया है, दिस ऑफर इज अ पॉजिटिव ऑफर. पॉजिटिव ऑफर का क्या मतलब होता है? बेसिकली इट इज एन ऑफर टू डू समथिंग. इट इज एन ऑफर टू डू समथिंग. यहां पे आरके ने जो ऑफर दिया है दीपिका को, दिस ऑफर इज
टू डू समथिंग, दिस ऑफर इज टू डू समथिंग, कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। अब ये जो पर्टिकुलर ऑफर है, इट इज अ पॉजिटिव ऑफर, जहां पे आरके को हम कहेंगे एज द ऑफरर और दीपिका को हम कहेंगे एज द ऑफरी। इनफैक्ट जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसे कहते हैं एज द ऑफरर, और जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी। वन मोर टाइम, लेट मी टेल यू, द पर्सन who is making the offer, the person who is making the offer is known as the offerer, whereas the person to whom this offer has been given is known as the offeree. So इस एग्जाम्पल में ऑफर किसने दिया है? आरके ने दिया है। किसको दिया है? दीपिका को दिया है। इसीलिए आरके इज द ऑफरर, whereas दीपिका इज द ऑफरी। दिस ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट। और जैसे ही दीपिका हाँ कह देती है, जैसे ही दीपिका हाँ कह देती है, देन व्हाट विल हैपन माय डियर फ्रेंड्स? दिस ऑफरी विल टर्न इनटू एन एक्सेप्टर। दिस ऑफरी विल टर्न इनटू एन एक्सेप्टर। तो देखो, मैंने आपको 3 शब्दों को इंट्रोड्यूस करवाया, ऑफरर, ऑफरी, एक्सेप्टर। जो पर्सन ऑफर देता है उसे कहते हैं एज द ऑफरर। जिस पर्सन को यह ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी। एंड एज सून एज द ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफर, सच अ पर्सन विल बी रिगार्डेड एज द एक्सेप्टर। याद रखना, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में जो ऑफर दिया है, दिस ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट, whereas an offer can also be given for some negative act. An offer can also be given for some negative act. It can also be given for some negative act. What is a negative act? Let us check out this example and then you will yourself understand what do you mean by a negative act. देखो यहां पे क्या हुआ है, टॉम और जेरी के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता है। डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग, मस्ट हैव बीन टॉट टू यू ऑल इन अकाउंट्स। यहां पे क्या हो रहा है, डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता है टॉम और जेरी के बीच में। मतलब यहां पे अब जेरी को कुछ पैसा टॉम को देना है, क्रेडिटर को पैसा आना है, डेटर को पैसा देना है। अब ऐसे केस में सुनो ना मेरी बात, कुछ साल पहले इस टॉम ने 1 लाख का लोन जेरी को दिया था। अब यही जो अमाउंट है अब आना पेंडिंग है फ्रॉम जेरी साइड। सो बेसिकली जेरी इज द डेटर एंड टॉम इज द क्रेडिटर। अब देखो आगे हुआ क्या है, क्योंकि अब समय आ चुका है पैसे डिमांड करने का, टॉम इज डिमांडिंग हिज मनी बैक फ्रॉम जेरी ऑन द ड्यू डेट। बट जेरी कहता है, हे टॉम, मैं आपको पैसा नहीं देगा, जो करना है कर ले, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। अब उस केस में अब टॉम जो है वो कहता है, ठीक है पैसा नहीं देना है ना, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। और जैसे ही मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, आप खुद देख लेना, अब आपके मार्केट में गुडविल पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी। मैं क्या, कोई और भी आपको पैसे नहीं देगा। जैसे ही इस बारे में जेरी गहराई से सोचते हैं, जेरी रियलाइज करते हैं, जी हां टॉम की बात तो सही है। तो अब जेरी टॉम को कह रहे, हे टॉम प्लीज डोंट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, हे टॉम प्लीज डोंट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, 6 मंथ्स का मेरे को और समय दे दीजिए, और अगर आप मेरे को 6 महीने का और समय देते हो और मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करते हो, आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 रुपीज। बट मेरे अगेंस्ट प्लीज 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 टॉम केस फाइल मत करना, मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करना फॉर द कमिंग 6 मंथ्स, आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 रुपीज। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, केस
ना फाइल करने के लिए, केस ना फाइल करने के लिए जेरी जो है टॉम को 10,000 रुपए ऑफर कर रहा है। केस ना फाइल करने के लिए, केस ना फाइल करने के लिए जेरी जो है टॉम को एडिशनल 10,000 रुपए ऑफर कर रहा है। तो यहां पे जो ऑफर दिया जा रहा है, दिस ऑफर इज फॉर अ नेगेटिव एक्ट, दिस ऑफर इज फॉर अ नेगेटिव एक्ट कि ही टॉम मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, जिसके बदले में मैं आपको एडिशनल 10,000 रुपए दूंगा, जिसके बदले में मैं आपको एडिशनल 10,000 रुपए दूंगा। कुछ ना करने के लिए यहां पे ऑफर दी जा रही है, कुछ ना करने के लिए यहां पे जो है ऑफर दी जा रही है। सो बेसिकली दिस ऑफर इज अ नेगेटिव ऑफर, दिस ऑफर इज अ नेगेटिव ऑफर। तो ऑफर कैन ईदर बी पॉजिटिव or it can be negative. It can be to do something or it can be to not do something. चाहे ऑफर पॉजिटिव है या चाहे ऑफर नेगेटिव है, both kinds of offers are allowed in the Indian Contract Act 1872. तो अगर मैंने आपको ऑफर दिया है कि क्या आप मुझसे मेरा ये फोन 50,000 में खरीदना चाहते हो, this is a positive offer. But an offer along with being positive, act कहती है it can also be for a negative thing. Okay, so you can also give an offer to abstain from doing something, to not do something, कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, जिसके बदले में मैं आपको एडिशनल 10,000 रुपए देने के लिए रेडी हूं। हाँ या ना? तो ये देखो, यही कहती है ऑफर की डेफिनेशन। व्हाट इज एन ऑफर? लेट अस चेक इट आउट। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, जब मैं कहती हूं विलिंगनेस टू डू, इट इज अ पॉजिटिव ऑफर। Or to abstain from doing something. Abstain from doing something means not to do something, means a negative offer. With a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. He is said to make an offer. तो देखो, जब कभी भी आप किसी को प्रपोज करते हो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, माना जाएगा आपने एक ऑफर दिया हुआ है। अब यही ऑफर जो है इसके बहुत सारे टाइप्स है, यही ऑफर जो है इसके बहुत सारे टाइप्स है। स्टार्टिंग विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, सबसे पहला टाइप जो है, सबसे पहला टाइप जो मैं आपको सिखाना चाहती हूं, दैट विल बी जनरल ऑफर। अच्छा, जनरल ऑफर के पहले स्पेशल ऑफर पढ़ाती हूं मैं। स्पेशल ऑफर, ओके, सुनो ना मेरी बात। What is a special offer? Okay, so when an offer is made to a specific person or a specified group of persons, it is known as a special offer. When an offer is made to a specific person or a particular group of persons, it is known as a special offer. जैसे कि say for example, जब आरके ने दीपिका को पूछा, ओके, विल यू मैरी मी, इट इज ओनली दीपिका, इट इज ओनली दीपिका हु कैन से यस और नो। सच एन ऑफर इज नोन एज अ स्पेशल ऑफर. This offer is made to only one person and only this person is eligible to accept this offer. But अब देखो,
when one person also makes an offer to a specific group of persons. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहती हूं, आप कौन हो? आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो फॉर जून अटेम्प्ट लॉ फास्ट ट्रैक. मैं आप लोगों को कह रही हूं कि हे स्टूडेंट्स, क्लास के बाद आज सैटरडे है, क्यों ना हम लोग सब डिनर के लिए चले. अब देखो, प्रिज्यूमिंग कोरोना वोरोना कुछ नहीं और आप लोग सब मेरे साथ यहां पे क्लासरूम में बैठे हो. मैं कहती हूं चलो क्लास के बाद वी विल गो फॉर सम पिज्जा पार्टी. ओके, लेट्स गो फॉर डिनर एंड लेट्स हैव सम फन. चलो, अब ऐसे केस में मैंने ये जो ऑफर दिया है, दिस ऑफर इज ओनली ओपन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स. एंड विच इज दिस ग्रुप ऑफ पर्सन्स? यू आर दिस ग्रुप ऑफ पर्सन्स. आपके अलावा चाह कर भी कोई भी पर्सन हमारे ये पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है. तो हो सकता है मेरे इंटर के स्टूडेंट्स है, मेरे दूसरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स है, बट चाह कर भी वो हमारे साथ इस पार्टी के लिए नहीं आ सकते. कौन आ सकता है इस पार्टी के लिए? सिर्फ और सिर्फ आप. जी हां, सिर्फ आप एलिजिबल हो मेरे साथ आज की शाम बिताने के लिए. यस और नो गाइस? सो दिस इज also considered as a special offer because this offer is made to a specific group of persons. So whenever an offer is made to a specific person or to a specific group of persons, such an offer is known as a special offer. Such an offer is known as a special offer. Yes or no, guys? Yes. And obviously, it can be accepted by only those persons. It can be accepted by only those persons who have been given this ऑफर. चाह कर भी कोई भी दूसरे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज शाम को नहीं आ सकते हैं. इसी का ऑपोजिट इज अ जनरल ऑफर. व्हाट इज अ जनरल ऑफर? An offer which is made to the public at large. An offer which is made to a public at large is known as a general offer. An offer which is made to the public at large is known as a general offer. So if it is made to the public at large, any person who is desirous to accept it can accept such an offer. Okay? Anyone from the public can accept such an ऑफर. इट इज नोन एज अ जनरल ऑफर. जैसे कि होता है ना, किसी मंदिर का भंडारा है. अब उस केस में चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, टीनेजर हो, बुढ़े हो, जवान हो, गांव के ना हो, फर्क नहीं पड़ता. एनी पर्सन हु विशेस टू फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज can come for that particular bhandara and can have his food over there. This is known as a general offer. This is known as a general offer. Any person, okay, from the public at large is eligible to accept that offer. जैसे कि बहुत बार हम मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग के लिए. से अभी समर सीजन आया है तो डिस्काउंट आता है ना? तो अब ये डिस्काउंट में लिखा है बाय एनी 3 shirts you will get 1 shirt free. Buy any 3 shirts you will get 1 shirt free. Now this is a general offer. This is a general offer. यहां पे अगर आपने 3 शर्ट खरीदे आपको 1 शर्ट मुफ्त मिलेगा ही. ओके, दिस इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज. Any person coming to the shop and purchasing 3 shirts will get 1 shirt in free. This is known as a general offer. This is known as a general offer. इसी general offer के लिए there is a very famous case law
which I want to tell you all. And you also have to learn the name of the case law. इसी केस लॉ का नाम है, सुनो ना मेरी बात, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. जो भी केस लॉज मैं क्लास में आप लोगों को बताने वाली हूं, ऑल दीज केस लॉज आर इंपॉर्टेंट, बट एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट you are only expected to learn the name of the case law, and you are only supposed to understand what has happened in the case law. मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं वापस से रिपीट नहीं करने वाली हूं. कल जाके कोई भी बच्चे ने इससे रिलेटेड सवाल पूछा है, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन. ओके, सुनो ना. Okay, listen. What is only expected from you all is to learn the name of the case law. Learn the name of the case law. And you are only supposed to understand what has happened in this case. Institute कभी ऐसा नहीं बोलेगा, Please describe कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस और 3 मार्क का सवाल पूछ देगा. ऐसा इंस्टीट्यूट ने ना कभी पूछा है और ना कभी पूछेगी. तो इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछ सकती है? What the institute can do is, the institute can prepare a question which is having similar facts as compared to this particular case. और फिर आपको कहेगी कि हे स्टूडेंट, अब आप बताओ इस केस में क्या होना चाहिए. डायरेक्टली ऐसा सवाल नहीं पूछेगी, ये केस लॉ के बारे में हमें कुछ बताइए. ऐसा इंस्टीट्यूट कभी भी नहीं पूछने वाली है. तो इसलिए आपकी क्या जिम्मेदारी है एज अ स्टूडेंट? यू आर ओनली सपोज टू लर्न द नेम, एग्जैक्ट नेम ऑफ द केस लॉ. क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे ना, आई विल टेल यू हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर्स. जब आप आंसर्स लिखोगे, यू आर सपोज टू राइट डाउन द नेम ऑफ द केस लॉ इन द रेफरेंस सेक्शन. ओके, और अब आपको केस लॉ मैंने पढ़ाया है, तो कॉन्सेप्चुअली यू आर क्लियर व्हाट हैड हैपेंड इन द केस लॉ. उसी चीज को आपको अप्लाई करके फिर इंस्टीट्यूट के सवाल का जवाब देना होगा. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो देखो इस केस लॉ में क्या हुआ. आई वांट टू गिव यू द ब्रीफिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर केस लॉ. किसी ने पूछा है, राशि पूछ रही है, मैम क्या सेक्शन नंबर लिखना कंपल्सरी है? नो राशि. At the foundation level, the institute does not expect you all to learn and write down the section numbers. But yes, it is necessary for inter and final students. वो तो मैं इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स को क्लास में ही लर्न करवा देती हूँ. बट ठीक है, अभी तो आपकी जस्ट शुरुआत है. जहां तक आपकी बात है, नो, आपके सवाल का जवाब है राशि, नो, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न द सेक्शन नंबर्स. ओके, तो सुनो ना मेरी बात. क्या हुआ था इस केस में? सुनो ना, व्हाट हैड हैपेंड. एक बहुत फेमस कंपनी थी और इसी कंपनी का नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. उसने बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि कोई भी पर्सन अगर हमारे स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करेगा, दिस पर्सन विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा. सो इन्फ्लुएंजा इज काइंड ऑफ अ फ्लू. तो अगर आप हमारी कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करते हो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस दैट वी विल गिव यू, वी गारंटी यू दैट यू विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा. सो यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर फ्लू. ओके, और अगर सपोज आपको फ्लू हो भी जाता है आफ्टर कंज्यूमिंग आवर स्मोक बॉल्स, वी विल गिव यू अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds. Because it is a British case law, the figures are in pounds. अब ऐसे केस में there was a person जिसका नाम था कार्लिल. इसी मोहतरमा ने क्या किया? She got these smoke balls. इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसने कंज्यूम भी कर दिए ये स्मोक बॉल्स, बट अनफॉर्चुनेटली किसी का बैड लक ही देखो, she contracted influenza. Now because she contracted influenza,
In spite of following all the instructions and consuming the smoke balls, she filed a case against the company कहते हुए, हे कंपनी देखो, आपने धोखा किया है. आपने गारंटी दी थी कि ये स्मोक बॉल्स कंज्यूम करने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. देखो मेरे को यहाँ पे ये फ्लू हो गया है, अब मुझे 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड दे दीजिए. कंपनी कहती है हम आपको ये नहीं देंगे पैसा. क्यों नहीं देंगे ये पैसा? कंपनी कहती है कि हमने तो इसके बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी. न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना ऑफर होता ही नहीं है, और ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस मिलेगा ही नहीं, अग्रीमेंट ही नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, सो वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू दिस पर्टिकुलर रिवॉर्ड. सो द क्वेश्चन टू यू इज, अब आप मुझे सोच के जवाब दीजिए कि क्या यहां पे दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और क्या ये कंपनी को, मिसेस कार्लिल को ये रिवॉर्ड देना पड़ेगा? कम ऑन टेल मी. Smoke ball is not a vaccination, it is kind of a medicine. Okay? किसी ने पूछा है कि हम अपने लैंग्वेज में केस लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं. शिवानी, सिर्फ केस लॉज ही नहीं, इनफैक्ट जब कभी भी आप इंस्टीट्यूट के सवालों के जवाब लिखते हो, ओके, दिस आंसर इज नॉट ओनली फॉर शिवानी बट ऑल दो स्टूडेंट्स who have asked me this earlier. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं? द आंसर इज यस. ओके, यू नीड नॉट राइट इन द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ लॉ. एग्जैक्ट लॉ के लैंग्वेज में लिखना बेटा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. You can write it on your own provided the meaning of the law is not changing. Okay? And you should be obviously grammatically correct. तो आपके sentences correctly frame होने चाहिए और interpretation change नहीं होना चाहिए. You can otherwise write it on your own. So yes, I think every one of you all gave the correct answer. So the answer to this question is yes, Carlyle is eligible to get this reward. And why is she eligible to get this reward? Because जब आप newspaper में ये advertisement दे रहे हो, it is an general offer that you have made. And general offer में any person from the public at large is eligible to accept this offer. And because the public at large is eligible to accept the offer, Carlyle is also eligible to accept the offer. And to an offer, when we get an acceptance, becomes an agreement which is enforceable by law, which becomes a contract, and thus she can recover this amount from the company. Okay? तो एक बार मेरे साथ क्या आप बोल सकते हो इस केस लॉ का नाम? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. इनफैक्ट मैं चाहती हूं आप लोग सब आपकी बुक्स में ये जनरल ऑफर के बाजू में इस केस लॉ का नाम लिख दीजिए. माई बुक्स आर ग्लॉसी एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज अ मार्कर पेन. वो जो परमानेंट मार्कर्स आते हैं ना, पतले वाले पेन की तरह जो आते हैं, उससे आपको लिखना होगा ये केस लॉ का नाम near general offer. Come on, I'm giving you 1 minute. Please write down the name of the case law in your chart book itself. Come on, fast, fast. चैट में मत लिखो, आपकी बुक्स में लिखो, चार्ट बुक में. तो जब आप चार्ट बुक में से रिवाइज करोगे आपको याद आएगा जो मैंने क्लास में कहा था. Oh, so you all are done with the writing part. That's great. Wonderful. Come on. तो अब देखो, ऑफर के दो टाइप्स अभी तक मैंने आपको पढ़ा है, जनरल ऑफर एंड अ स्पेशल ऑफर. So special offer is an offer which is made either to a specified person or a specified group of persons, and only that person can accept the offer to whom it is made.
जबकि जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन हु वांट्स टू कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर. अब थर्ड क्लासिफिकेशन इज, पहले मैं पढ़ाना चाहती हूं काउंटर ऑफर बिकॉज इट इज मच मोर इजियर. व्हाट इज अ काउंटर ऑफर? कम ऑन, इजी लैंग्वेज में. ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर. ऑफर के बदले में ऑफर लेना इज अ काउंटर ऑफर. Lalman Shukla versus Gauri Dutt. I will teach when I will be teaching you all the essentials of a valid offer. Okay? प्लीज आप लोग मुझे याद मत दिलाइए कि मुझे क्या पढ़ाना है. आई एम अवेयर अबाउट व्हाट थिंग्स आई हैव टू टीच एंड वेयर. सो प्लीज, एज आई टोल्ड यू ऑल, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए. सब कुछ मैंने आपको वादा किया है ना, दैट आई विल बी टीचिंग यू ऑल एवरीथिंग. ये वादा मैं पूरा करूंगी. ओके तो लालमैन शुक्ला का जो केस है, आई विल बी टीचिंग यू ऑल व्हेन आई विल टीच यू ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. उसमें मैं आपको बताती हूँ, थर्ड पॉइंट में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हेन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. उसमें ये केस लॉ मैं आपको पढ़ाने वाली हूं. ठीक है, सुनो ना. ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर. ये काउंटर ऑफर तो हमने जिंदगी में बहुत बार किया है, स्पेशली व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग. जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, व्हाट डू यू बार्गेन. बार्गेनिंग हमारे खून में है. अब जब आप बार्गेन करते हो, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग अ काउंटर ऑफर. शॉपकीपर कह रहा है कि मैडम जी आपने ये जो टी शर्ट सिलेक्ट किया है उसकी कीमत 500 रुपए है. उसने आपको ऑफर दिया है कि मैं आपको ये टी शर्ट 500 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं. आप कह रहे हो नहीं नहीं भाई साहब, 500 मैं तो देने ही नहीं वाली हूं. इनफैक्ट मैं 400 रुपए से 1 रुपया ज्यादा आपको नहीं देने वाली हूं. आपने क्या किया है? ऑफर के बदले में ऑफर दिया है, विच इज अ काउंटर ऑफर. तो ये शॉपकीपर वाले भैया कह रहे हैं नहीं नहीं मैडम जी, 400 रुपए में तो मेरी खरीदी भी नहीं है, मैं आपको नुकसान में क्यों बेचूं, मैं आपको ये 400 रुपए में टी शर्ट नहीं बेचूंगा. अब आप कह रहे हो कि आप, शॉपकीपर कह रहा है ठीक है मैडम जी आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो 400 नहीं बट 480 में मैं आपको ये टी शर्ट देता हूं. आप कहते हो ठीक है चलो भैया, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 450 में ये आप डन कर दीजिए. तो शॉपकीपर कहता है ठीक है. तो अब देखो, अब 450 के ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है. जब 450 के ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है, अब दोनों के बीच में अग्रीमेंट होती है विच विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और उसके पहले के सारे ऑफर जो है वो लैप्स हो जाते हैं. उसके पहले के सारे ऑफर जो है वो क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं. ये लोग कह रहे हैं कि मैम हम तो 150 रुपए में ही खरीद लेगी. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी आपको जरूर मेरे साथ लेके चलोगी. ठीक है, मैं सिलेक्ट करूंगी, आप बार्गेन करना. फिर जितना भी डिफरेंशियल प्राइस है आधा मुनाफा आपका. ठीक है, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, विन विन सिचुएशन. ठीक है, चलो आ जाइए. ओके तो ऑफर के बदले में जब कभी भी आप ऑफर देते हो, इट इज नोन एज अ काउंटर ऑफर. याद रखना, जिस ऑफर को लास्ट में एक्सेप्टेंस मिला है, जिस ऑफर को लास्ट में एक्सेप्टेंस मिला है, वही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बिकम एन अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. उसके प्रीवियस सारे ऑफर्स विल लैप्स. नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर नाम में लिखा है क्रॉस ऑफर. when two parties exchange identical offers, obviously they are exchanging identical offers because they are ignorant about the other's offers. Such an offer is known as a cross offer. Such an offer is known as a cross offer. क्या आप लोग शॉपिंग की दुनिया में ही खो गए हो अभी तक? बेटा आगे बढ़ो, शॉपिंग से ज्यादा हमें बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बहुत आगे बढ़ना है. आ जाइए यहां पे, सुनो मेरी बात. व्हाट इज अ क्रॉस ऑफर?
when two parties exchange identical offers, obviously they are exchanging identical offers because they are ignorant about the other's offer. Such offers are known as cross offers. देखो ना यहां पे जैसे कि क्या हुआ है, यहां पे दीपिका आरके को कह रही है, हे आरके, क्या तुम मेरा घर 2 करोड़ में खरीदना चाहते हो? और आरके ने दीपिका को आइडेंटिकल ऑफर दिया है कि हे दीपिका, क्या तुम अपना घर मुझे 2 करोड़ में बेचोगे? क्या मैंने 2 लाख कहा? आई एम नॉट श्योर, इट इज 2 CR, ओके। तो यहां पे उसने घर बेचने का ऑफर दिया है फॉर 2 CR, और यहां पे उसने वही घर को खरीदने का ऑफर दिया है एट द सेम अमाउंट, दैट इज 2 CR। यहां पे वो घर बेचने का ऑफर कर रही है, यहां पे वो घर खरीदने का ऑफर कर रहा है। 2 identical offers have crossed each other, obviously because they were ignorant about the other's offer. Such offers, oh, I'm so sorry, not RKRS, I was just checking your concentration, okay. Such an offer is known as a cross offer. Question to you all is, मेरे सवाल का जवाब दो, जब क्रॉस ऑफर होता है, क्या पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जब क्रॉस ऑफर होता है, क्या पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? अनमोल का डाउट है, मैम अमाउंट कम ज्यादा होगा तो क्या ये क्रॉस ऑफर होगा? नो, देन द ऑफर इज नॉट आइडेंटिकल, देन इट इज नॉट अ क्रॉस ऑफर. बीच में आ रहे. So yes, very good. All of you all have given me the correct answer. Parul, Asha, Aditi, Kajal, Piyush, Dimple, Divyanshu, Sanskar, very good. Masira, Kashish, Rupal, Ricky, Nishant, very good my dear friends. इस केस में जब 2 identical offers they cross each other cannot constitute a contract because my dear friends यहां पे दोनों भी पार्टीज ने ऑफर दिया है. ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं है ना, और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो यस, डिसेंट गर्ग ने जवाब दिया है. आप लोग आपके नाम के आगे ऐसे एडजेक्टिव्स क्यों डालते हैं? देयर इज सम ट्रेंड गोइंग ऑन. व्हाट? डिसेंट गर्ग, डूड जतिन, सम ट्रेंड गोइंग ऑन? प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई एम नॉट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. मुझे कुछ आइडिया नहीं है आजकल क्या चल रहा है. सो यस, इट्स फनी दो, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पे दोनों भी साइड से ऑफर्स ही जा रहे हैं. देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, एक आधी पार्टी ने पहले वाले ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस दिया है तब फिर माना जा सकता है कि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है एंड देन इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ऐसे ही लिख रहे हो क्या? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, देन इट इज फाइन. हिमांशु द डायमंड, चलो कोई बात नहीं. बेटा CA अंकिता, CA इज माई प्रोफेशनल डिग्री. इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, इट इज समथिंग दैट आई हैव अर्नड. मैं ऐसा थोड़ी ना कह रही हूं क्यूट अंकिता, ऐसे थोड़ी ना मैंने कहा है, राइट? CA इज अ डिग्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दोज वर्ड्स. CA बन जाओ, आप खुद भी लिखोगे, फिर आपको डूड या डायमंड या ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. आ जाओ. ओके, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड यू ऑल. मैं जनरली आपको पूछ रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैंने नाम ऐसे कल भी देखे थे और आज भी देखे थे. कल भी मेरे माइंड में आया था कि मैं पूछूं, बट देन आई थॉट फॉरगेट इट. ओके,
सो आ जाइए, कम ऑन. Last type of offer is a standing or a continuing or an open offer. नाम में लिखा है, नाम में ही लिखा है. प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. आप लोग क्या क्या चैट कर रहे हो? स्टॉप चैटिंग. ओके, कॉन्सेंट्रेट. ओके. An offer that is allowed to remain open for a particular period of time is known as an open offer. Okay, an offer, thank God it is not a face to face batch. नहीं तो आपको संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था. आ जाइए, सुनो मेरी बात. An offer which is open for a particular period of time is known as an open offer. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल जो ये समर डिस्काउंट सेल चलते रहता है, ऐसा नहीं होता है कि ये सेल सालों साल चलते रहेगा. इट इज ओपन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. से फॉर एग्जाम्पल इट इज गोइंग टू बी ओपन ओनली टिल द 1st of May. सो द ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर द 1st of May. या तो फ्लिपकार्ट का जब बिग बिलियन सेल होता है, इट इज ओपन ओनली फॉर 3 days. So now it is an open offer because now this offer is open, it is standing, it is going to remain valid for a period of 3 days, 15 days, 1 month or 3 months as the case may be. Getting this or no my dear friends? Yes, so these are the types of offer. एक बार read कर लीजिए फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. देखो, cross offer, when two parties exchange identical offer in ignorance, okay, of each other's offer, it is known as a cross offer. याद रखना, no binding contract is formed. okay, क्योंकि यहां पे दोनों भी पार्टीज के साइड से ऑफर आया है, एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं दिया है. स्टैंडिंग ऑफर, यस, इंटर की बैच में आई वुड लव टू टीच यू ऑल फेस टू फेस. तब मैं बराबर आप लोगों को कंट्रोल करूंगी. आई टोल्ड यू आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. ओके, इंटर की बैच में तो फाउंडेशन से भी बहुत ज्यादा मजा आता है. आ जाइए. और ये तो सिर्फ फास्ट ट्रैक बैच. आप सोचो फास्ट ट्रैक बैच में इतने मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर बैच में तो कितना मजा आता होगा. स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर, सुनो ना मेरी बात. ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ स्टैंडिंग और अ कंटिन्यूइंग ऑफर. Yes or no guys? So these are the 5 types of offer. कौन से है? देखो, general offer, an offer which is made open to the public at large. Offer which is given only to a specified person is known as a special offer. Two offers when they cross each other, obviously in ignorance of the other's offer, is known as a cross offer. Offer के बदले में offer देना is known as a counter offer. And an offer which is open for a particular period of time is known as a continuing offer or an open offer or a standing offer. सार्थक ने सवाल पूछा है बाइंडिंग मतलब क्या. मैं चाहती हूं आप में से कोई सार्थक को इस सवाल का जवाब देगा. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. What time is your next class? Can you all tell me please? Essentials of a valid offer. What time is your next class? Can you all please tell me? आपका 3 बजे मैथ्स का क्लास है. Do you all have some other class today? Please tell me. I'm waiting for your answers, my dear friends. Okay, so you have class. तो फिर आप क्यों बोल रहे थे मैम जब तक है जान तब तक आप पढ़ा सकते हो? I thought I will take class till 5 o'clock today. Okay, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आ जाइए टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटिंग टू एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. कोई भी ऑफर वैलिड कब होता है उसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है.
सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कोई भी ऑफर वैलिड होगा इफ इट इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये पॉइंट तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अगर कोई सोशल इनविटेशन है, याद कीजिए कटरीना जी और सलमान जी को, या डोमेस्टिक ऑफर है, याद कीजिए आपकी फेवरेट जोड़ी विराट और अनुष्का की। अब ऐसे केस में यहां पे इन्होंने ऑफर दिया है और एक्सेप्टेंस भी मिला है, बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स दिस ऑफर वाज ईदर सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर। There was no intention of creating a legal relationship and hence this will only remain as an agreement and it will not turn out to become a contract. तो अगर आप चाहते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट बने, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बने, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बने, तब उस केस में आपका ऑफर ऐसा होना चाहिए which is able to create a commercial relationship so that it is enforceable in the eyes of law. Getting this or no? So सबसे पहला पॉइंट वही चीज कह रहा है, आपका ऑफर must be such that law is capable of creating a legal relationship. देखो, अगर आपका ऑफर का इंटेंशन कभी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था ही नहीं, तो ऐसे ऑफर को जो एक्सेप्टेंस मिलता है वो अग्रीमेंट की तरह ही रह जाता है और इसका कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, okay, I'll just have a word with Raj sir and accordingly we will decide till what time should I take the class. Okay, I'll just message him. Sir, okay, next, I have messaged sir, he'll reply. Okay, and as soon as he replies I'll get back to you all. Okay, सुनो ना, आपका ऑफर इट मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड इट शैल नॉट बी वेग। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था जब मैं आपको असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रही थी कि आपका ऑफर और आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वेग नहीं हो सकते। तो अगर मैं कोई शॉप में जाती हूं और मैं शॉपकीपर को कहती हूं, हे शॉपकीपर गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल, सच एन ऑफर इज वेग। वेग मतलब इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट सर्टेन। ऑयल मतलब कौन सा ऑयल? इज इट हेयर ऑयल, इज इट कुकिंग ऑयल, इज इट मोटर ऑयल? ऐसे ऑफर को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता है, हाँ या ना? क्या हुआ कल? कल भी ऐसा ही हुआ, आपने एंड की क्लास सर ने 1-2 मिनट बाद ही स्टार्ट की, तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मेरे को समझ में नहीं आई बात। शुड आई लीव यू ऑल अर्ली? ओके, राज सर का मैसेज आ गया है दैट ही विल स्टार्ट द क्लास बाय 3:15। तो ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, आई थॉट okay, I will continue for 20 more minutes. I will leave you all by 3 o'clock. So you will get 15 minutes break. Okay? क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कल भी क्लास आपने छोड़ी और सर की क्लास immediately शुरू हो गई, so you all did not get a break, ना? I'll continue till 3 o'clock and then I will leave you all. Okay? Is it fine? So आपको 15 minutes का break मिल जाएगा, आप चाय नाश्ता कर पाओगे before the maths class. Don't worry. So देखो, first of all, whenever you are giving an offer should be such that there is an intention to create a legal obligation. Along with that, आपका जो offer है, it must be certain, it cannot be vague.
थर्ड पॉइंट कहता है, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। और इसी के लिए मैं आपको एक केस लॉ भी पढ़ाना चाहती हूं, बट पहले आई विल टेल यू व्हाट दिस पॉइंट सेज एंड देन वी विल गो टू द केस लॉ। देखो, ऑफर कब कंप्लीट होता है? ऑफर तब कंप्लीट होता है जब आप आपके ऑफर के बारे में कम्युनिकेट करते हो टू द ऑफरी। अगर ऑफरी को आपके ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो ऑफर करके क्या मतलब हुआ? ऑफर का मतलब तो तब होगा ना व्हेन द ऑफरी नोज अबाउट द ऑफर, नहीं तो ऑफर देके भी क्या मतलब हुआ? सो बेसिकली unless an offer is communicated there can be no acceptance by it। और अगर acceptance नहीं है, agreement नहीं है, और अगर agreement नहीं है then there can be no contract। evening में I have my CA inter class, okay, so that is why I cannot take the class, then I am free only after 6 o'clock, क्योंकि आपकी क्लास के बाद मेरा सीए इंटर लॉ होता है एंड सीए इंटर लॉ गोज अप टू 5:45, 6 o'clock। आफ्टर दैट आई एम फ्री। एक्चुअली आज मुझे बहुत लेट पता चला कि हर्षद सर की क्लास नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड योर क्लास एट 12 o'clock ओनली। आप बताओ, मुझे संडे भी क्लास रखनी है क्या? अच्छा, हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्या? 3 बजे के बाद, 3 से 3:15 के बीच में, क्योंकि अब मेरे पास 20 मिनट है ना, आई वॉन्ट टू यूज इट वेरी इफेक्टिवली, है ना? कल क्लास रखनी है, नहीं रखनी है, कितने बजे रखनी है, ऑल दिस वी कैन डिस्कस बिटवीन 3 to 3:15। करेंटली वी विल डिस्कस अबाउट लॉ, ओके? ठीक है, सुनो ना मेरी बात। मैं क्या बोल रही थी? देखो, ऐसे ही लिंक टूट जाता है। सुनो सुनो सुनो, हाँ, एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो आपका ऑफर वैलिड ही नहीं माना जाता है, ओके? और ऑफरी को अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है, वो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, एंड नो अग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, हाँ है ना? तो सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ था इस पर्टिकुलर केस लॉ में? ये केस लॉ का नाम क्या है? क्या आपको ये केस लॉ का नाम याद रखना है? जी हाँ, जो भी केस लॉ मैं क्लास में डिस्कस कर रही हूं, उन केस लॉस के नाम आपको याद रखना ही होगा। केस लॉ का नाम है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने 2 केसेस देखे हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड साथ साथ में लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जो अभी हम देखने वाले हैं। यहां पे देखो क्या हुआ था, देयर वाज दिस फीमेल गौरीदत्त, और इसी गौरी का नेफ्यू जो है वो खो गया। इसी गौरी का नेफ्यू जो है वो खो गया। अब बिकॉज द नेफ्यू वॉज मिसिंग, शी अनाउंस्ड, व्हाट डिड शी अनाउंस? कि जिस भी पर्सन को मेरा खोया हुआ नेफ्यू मिल जाता है, मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगी। हर नेफ्यू वॉज मिसिंग एंड शी अनाउंस्ड कि जो भी पर्सन को मेरा मिसिंग नेफ्यू मिलता है, आई विल गिव दैट पर्सन अ रिवॉर्ड। अब गौरी दत्त का ही एक नौकर था, सर्वेंट था, शुक्ला जी। इत्तेफाक से क्या हुआ, शुक्ला जी तब कहीं कुछ काम से बाहर थे एंड ही फाउंड दिस नेफ्यू ऑफ गौरी, और उसी को वो घर पे लेके आते हैं। सो लालमैन शुक्ला ट्रेस द बॉय एंड जब उसे वो नेफ्यू मिला, वो उसे गौरी के पास लेके जाते हैं। बट जब ये अनाउंसमेंट हुई थी ना, शुक्ला जी वॉज नॉट एट होम, सो ही वॉज अनअवेयर अबाउट द अनाउंसमेंट दैट गौरी हैड मेड कि जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं ये रिवॉर्ड दूंगी। उसको तो ये पता ही नहीं था।
इग्नोरेंस में, क्योंकि एज अ पर्सन विद ग्रेट एथिक्स, ओके, as a human being, obviously, what did he do when he found the nephew? He came to Mrs. Gauri and told कि हे गौरी जी, देखो ये नेफ्यू आपका यहाँ पे मुझे मिला है, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉय. बाद में लड़के को दे दिया गौरी जी के पास एंड ही लेफ्ट फ्रॉम द हाउस. लेटर ऑन द अदर सर्वेंट्स टोल्ड हिम कि शुक्ला जी आप तो आपका रिवॉर्ड क्लेम करना भूल ही गए. तब शुक्ला जी कहते कौन सा रिवॉर्ड, और बाकी के सर्वेंट्स तब उसे बताते हैं कि गौरी ने आपके पीछे ऐसे कुछ रिवॉर्ड के बारे में अनाउंस किया था. हाँ, अब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, ही आस्क्ड गौरी जी फॉर द रिवॉर्ड एंड गौरी जी डिनाइड टू मेक द पेमेंट फॉर द रिवॉर्ड. अब आप मुझे बताओ, सपोज अब ये केस आपके पास आया, आप जज हो, क्या आप शुक्ला जी को ये रिवॉर्ड दोगे? बोलो मुझे. लीगली, मॉरली नहीं कह रही हूं. मॉरली गौरी को ये पैसा देना चाहिए शुक्ला जी को. मैं कह रही हूं लीगली शुड और इज शुक्ला जी एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड? यस तो क्यों यस, नो तो क्यों नो? मुझे रीजंस के साथ जवाब देना. ओके, तो कोमल, निशांत, रूपल, काजल नो कह रहे हैं, बट इन सारे बच्चों ने मुझे जवाब नहीं दिया है. वेरी गुड. आलोक इज द स्टूडेंट हु हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर विद द करेक्ट रीजनिंग. नो मैम, Shukla ji is not eligible to get the reward because he was unaware about the offer. So very good, Alok. I am so proud of you. यही उसका जवाब है. My dear friends, Shukla ji is not entitled to get the reward because he did not know about the offer. जो ऑफर के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसका एक्सेप्टेंस कैसे पा सकते हो आप, है ना? तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए उन्होंने एलिजिबल नहीं है. मैं चाहती हूं यहां पे आप इस केस लॉ का नाम लिख दीजिए. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस लॉ? लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त. ठीक है? यस, वेरी गुड. अनमोल, वैष्णवी, शिवानी, अब्दुल, संस्कार, जितेश, लक्ष्य, क्या बात है. वेरी गुड. गुड जितेश. ओके, सो यस, यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट. लेट मी मूव अहेड. तो देखो, तीन चीजें हैं जो नेसेसरी है कोई भी वैलिड ऑफर के लिए. तीन चीजें. कौन सी तीन चीजें? वन, जब कभी भी आप ऑफर देते हो, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अलोंग विद दैट, फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट वो ये कहता है, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट? दैट offer must be made with the view to obtaining the assent of the other party. Offer must be made with the view of obtaining the assent of the other party. इसका क्या मतलब होता है? जब कभी भी आप ऑफर देते हो, am I audible and visible? Is the lecture working properly? जब कभी भी आप ऑफर देते हो, माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑफर मस्ट बी मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेंस. जब कभी भी आप ऑफर देते हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू गेट एन एक्सेप्टेंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ अपने व्यूज डिस्क्लोज किए हैं अबाउट द ऑफर. जैसे कि देखो, मैं कह रही हूं, मैं सोच रही हूं कि मैं ये फोन 50,000 में बेच दूं. अब जब मैं ऐसा कहती हूं ना कि मैं सोच रही हूं कि मैं ये फोन को 50,000 में बेच दूं, व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम नॉट मेकिंग एन ऑफर.
I am just disclosing my views about what I am thinking about this phone. जब आप कहते हो मैं सोच रही हूं कि मैं ये फोन को बेच दूं, it cannot be considered as an offer because your intention is not to get an acceptance, but your intention is to get the views from the other party. This cannot be regarded as an offer. जगदीश मुझे कॉल क्यों कर रहा है? प्लीज डोंट कॉल मी जगदीश. If you have any doubts, you can message me on the Telegram group. I thought my lecture is not working. That is why I asked. Okay. Next, point number 5. Even this is an important point. An offer may be conditional. 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 तो या तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है या तो ऑफर कंडीशनल नहीं हो सकता है. बट अगर आप चाहो ऑफर कंडीशनल हो सकता है. कंडीशनल मतलब क्या? इट मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्लैट इन मगरपट्टा सिटी इन पुणे एंड नाउ दैट फ्लैट इज एम्प्टी. तो अब मैंने ऑफर दिया है, ब्रोकर को कहा है कि हे ब्रोकर, आई एम रेडी टू गिव दिस फ्लैट ऑन रेंट ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. तो सबसे पहली बात तो आई विल गिव माई फ्लैट टू अ फैमिली, नॉट टू बैचलर्स. और फैमिली के साथ साथ दिस फैमिली शुड ऑल्सो बी अ वेजिटेरियन फैमिली. यहां पे मैंने ऑफर दिया है एंड माई ऑफर इज अ कंडीशनल ऑफर. जब तक आप वेजिटेरियन और फैमिली वाले नहीं हो तब तक आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं हो. एंड ऑफर मे बी कंडीशनल. मेरा फ्लैट है, मेरी मर्जी रहेगी, मेरी इच्छा चलेगी. अगर मैं चाहूं तो फ्लैट दूं, ना चाहूं तो बैचलरेट्स को ना दूं. हाँ है ना? तो यही कहता है ये पॉइंट नंबर 5, दैट एन ऑफर मे बी कंडीशनल. एन ऑफर मे बी कंडीशनल. नेक्स्ट, पॉइंट 6 कहता है, व्हाट इज पॉइंट नंबर 6 सेइंग? पॉइंट 6 कहता है जितेश कह रहा है मैम आज बारिश हुई तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा. जितेश, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, दिस विल बी अ वेगरिंग अग्रीमेंट. वेगर ये वेगर होता है, ठीक है? दिस इज नॉट एन ऑफर. वेगरिंग अग्रीमेंट्स जब हम करेंगे मैं आपको डिटेल में इस बारे में बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6. ऑफर शुड नॉट कंटेन a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Yes. तो अगर मैं आपको कहती हूं I offer to sell you my iPhone for ₹50,000 and if you do not reply within 2 days, I will assume that you have accepted my offer. आपका ऑफर ऐसे टर्म्स में नहीं हो सकता है. या तो वो पर्सन हाँ कहेगा या ना कहेगा. अगर उसने हाँ भी नहीं कहा है या ना भी नहीं कहा है मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी बात आप मान नहीं सकते. दिशा पूछ रही है मैम अगर झूठ बोला कि हम वेजिटेरियन है और फ्लैट रेंट पे दे दिया और बाद में पता चला कि नॉन वेजिटेरियन है, देन फ्रॉम दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड एंड यू विल बी एबल टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द फ्लैट ऑन एन इमीडिएट बेसिस. ठीक है? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा बिकॉज इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. झूठ बात बोली गई ना, जानबूझ के इंटेंशनली झूठी बातें बोली गई है. इट विल अमाउंट टू अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. और अगर आप चाहो उसको इमीडिएटली वॉइड ट्रीट करके उनको तुरंत घर से बाहर निकाल सकते हो. या तो अगर लग रहा है कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, रेंट तो आ रहा है ना, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, रहने दो, then the contract will remain to be a valid contract if you do not take an action against the other party. Okay? So yes, what is point number 6 saying? Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to
एक्सेप्टेंस. तो आपका टर्म ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया हाँ या ना में तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि आपने हाँ कह दिया. ऐसा ऑफर वैलिड नहीं होता है. पॉइंट नंबर 7 अभी पढ़ाया था. ऑफर कैन ईदर बी जनरल और इट कैन बी स्पेसिफिक. ठीक है. सो व्हेन इट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज इट इज अ जनरल ऑफर, एंड व्हेन इट इज मेड ओनली टू अ सिंगल पर्सन or a particular group of persons, it will be considered as a specific offer. Next. Offer is different. Offer is different from a mere intention or an announcement. Okay? एक्चुअली ये पॉइंट 8. हाँ, तो मियर स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? मियर स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो, ओके, कि ये मेरा घर है और ये खाली है और मुझे रेंट पे देना है. अब ऐसे केस में दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन ऑफर. ओके, यू आर नॉट मेकिंग एन ऑफर टू द अदर पर्सन, इट इज अ मियर स्टेटमेंट. इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन ऑफर. और एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाना चाहती हूं, दैट इज एन ऑफर कैन ईदर बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इंप्लाइड. एक्सप्रेस मतलब आपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ईदर ओरली और इन राइटिंग. तो अब विल यू परचेस माई फोन फॉर 50,000, मैंने आपको शब्दों में पूछा है. इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, बट एन ऑफर कैन ऑल्सो बी इंप्लाइड इन नेचर. जैसे कि अ रिक्शा वाला इज स्टैंडिंग ऑन द रिक्शा स्टैंड, इट इज एन implied offer that he is making, okay, to take you where you want to go. So an offer may either be express or it may be implied. और ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, offer is different from an invitation to offer. This takes around 15 to 20 minutes, which I will be teaching you all tomorrow. इसलिए तो मैंने आपको कहा कि ये अभी मैं नहीं सिखा सकती हूँ because you have your maths class at 3:15 and it's already 3 o'clock right now. So invitation to offer क्या होता है और offer क्या होता है, ये अलग अलग है. मैंने पहले भी कहा है, रिक्की प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑफ what I am supposed to teach you. भरोसा रखो मुझ पे, मैं सही समय पे सारी चीजें आपको बता दूंगी. कसं व्हायचं तुमचं? मराठी में बोलू क्या? ओके. और एक लास्ट पॉइंट है जो कहता है, क्या कहता है? दैट स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. ओके. सपोज आप मुझे पूछते हो कि मैम आपका ये आईफोन कितने का है, तो मैं कहती हूं 1,08,000 रुपए का है. तो जब मैं ये 1,08,000 रुपए कह रही हूं, इट डज नॉट मीन दैट आई वांट टू सेल दिस फोन टू यू. आई हैव जस्ट मेड अ स्टेटमेंट अबाउट द प्राइस ऑफ माई फोन, दैट इज इट. इट डज नॉट मीन दैट आई एम विलिंग टू सेल दिस फोन टू यू. ओके गाइस. 8th पॉइंट जो है बेटा, 8th पॉइंट इन्विटेशन टू ऑफर का और ये स्टेटमेंट का, ये मैं कल आपको पढ़ाने वाली हूं. ओके. 8th पॉइंट. किसी ने पूछा मैम 4th पॉइंट वापस से रिपीट करो. 4th पॉइंट सुनो ना मेरी बात. 4th पॉइंट में क्या है? इट मस्ट बी मेड विद द व्यू. हाँ, जब कभी भी आप ऑफर देते हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू रिसीव एक्सेप्टेंस. ओके. आपका इंटेंशन सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्लोज करने का नहीं होना चाहिए. तो जैसे कि मैं कह रही हूं, मैं सोच रही हूं मैं अपना फोन बेच दूं, आपका सोचना इज ओनली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज. ओके. इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर. ठीक है? ठीक है संस्कार? ठीक है जितेश? Yes, 4th and 8th point are almost similar, but 8th point is a little deeper point. This you will understand tomorrow when I will teach you invitation to offer. Okay? So yes, 8th point will be done clearly only after tomorrow's lecture, because invitation to offer and offer is a very big topic which takes around 15 to 20 minutes. So this I cannot teach you all today because you have your next lecture lined up after my class.
है ना. इम्प्लाइड का एग्जाम्पल गायत्री दिया ना मैंने, जब रिक्शा वाला जब रिक्शा स्टैंड पे खड़ा हुआ है, इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर दैट ही हैज मेड. ठीक है. So this is all for today, my dear friends. Thank you very much. I hope you all have understood till here. About tomorrow's class, I will let you know by evening through a message on the Telegram group. Okay? Bye bye. Take care. See you soon. Bye.